Namaste. Hello. Thank you so much. Thank you so much for joining. Yeah, Uh, it's my pleasure. so my first question will be like, please, can you a little bit highlight about the concept of the spirituality and the human consciousness in brief, and why this is the best time for the humanity to understand this concept? स्पिरिचुअलिटी क्या है? ये जानना कि हम मैं कौन हूँ। यहाँ से Hmm. स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। एम आई जस्ट ए बॉडी जो एक बार पैदा होती है, मरती है, या इसका कोई और डायमेंशंस हैं? यहाँ से जब ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है और स्पिरिचुअलिटी की जर्नी खत्म होती है ये जानने पे कि मैं कौन हूँ इसके एक्सपीरियंस से। और इस समय हमें पहले बताया जाता था कि बहुत समय लगता है, सदियों लगती हैं, अनेकों जीवन भाग पार्टिसिपेट करना पड़ता है इवॉल्व होने में. It was due probably up to some extent, but now we are passing through a consciousness shift where everything is much easy. We could jump our consciousness, which was never possible before that. So that is the time frame we are lucky to be into this stage right now. It is happening. Right now, and we are getting this opportunity to raise our consciousness to the level where we can go in a vertical way. Now I cannot explain them what is the vertical way for us, but because I have seen and I have understood your videos and the other spirituality concepts, मुझे पता है कि ये क्या है, but मैं उनको कोशिश कर रही हूँ कि कैसे उनको वर्टिकल क्या समझा है? सी आप पाए। उनको ऐसा बता सकते हैं कि जब हम एक टाइम लूप में फंसे होते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं, एक ही प्रॉब्लम, एक ही तरह की लाइफ रिपीट करते हैं, बिकॉज वी आर इन ए लूप, और वो लेसन हमें सीखने में इतना स्लो होता है कि दैट इज हॉरिजॉन्टल. जब हम उस लूप से जंप करके नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज वर्टिकल 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 वर्टिकल. विद दैट, इन दैट सेंस देयर इज ए मैप ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस रेज वर्टिकली. जब वो वर्टिकल रेस करती है तो हम न्यू एक्सपीरियंस करते हैं, और अब हम ऑल टुगेदर न्यू एक्सपीरियंसेस करने के लिए रेडी है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जो अब तक उसने नहीं किया. जो पोटेंशियल डोरमेंट है वो सारा एक्टिव हो सकता है. वी आर इन टू दैट स्टेज नाउ, and not only individual, rather it's collective possibilities there for humanity as a whole. See how beautiful this world would be after that. Right. And I have heard about this particular month, August 2023, a lot. There are several crucial cosmic events. Cosmic events है जो अभी हो रही है. For example, full moon है, दो full moon है, which is very important. People are saying today is the Lion Gate portal. So is this all true, or ये सिर्फ कुछ First लोगों को part is मालूम? true that there are many cosmic events are in lineup. This is true, but I don't see 7 7 8 8 9 9. It happens every month, every year, and it is happening. For me, it does not have much significance. Moreover, in every year, probably in August, there are two moons in August, in the month of August. These cosmic movements are happening as it is, but many cosmic events are lined up because timeline has been compressed and a new portal has been opened some months ago. That means the consciousness is now going to this direction very fast. When the timeline is compressed and the people are moving very fast, then the events are lined up. But the 8 8 line gate, for me, it has no significance. So it's always happening. This is not like just the month that it is Yeah, happening. for me, Okay. at least. But is this something like it's something is happening at the higher level this month than the other months, or something that's why they are like pointing out? See, if we see like something like this, that it is, see, we live in isolation. So we see Earth, and the galactic is out of this. It is a galactic event. And in this galactic event, cosmic cosmology is playing their role. Okay. Okay. Can you explain the conflict? जो conflict होती है manifestations में. Let's say, for example, we are sharing the same kind of vibrations, right? मेरा vibration भी raise हुआ है, और जो दूसरा person है उसका भी vibration same level पे है. मैं जो manifest कर रही हूँ उसका opposite ये manifest कर रहा है. How this conflict of the manifestations work? Because there's बहुत ज्यादा, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है.
So I was thinking कि हम जो अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कितने तेजी से जाएगा ऊपर. See, जो मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें कई फैक्टर हैं. इट इज़ नॉट हाउ मेनी पीपल आर डूइंग दिस. जो जो कॉन्शियसनेस जिनकी हायर होती है उनके मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होते हैं. फर्स्ट थिंग. जो लोग बीच में होते हैं, मिडिल में होते हैं, उनके मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होते हैं. और जो लोग, नंबर ऑफ पीपल इज नॉट इम्पॉर्टेंट. जो लोग नंबर ऑफ पीपल, सी अगर आप से कि वो पीपल 100 हैं और हम 5 हैं, तो किसका मैनिफेस्टेशन होगा, इस तरह ये काम नहीं करता मैनिफेस्टेशन. सो split is happening on the basis of consciousness. See, the consciousness is dividing between two, and those who are into this path, they are manifesting a smooth transit, and that is the demand of right now. कि ये process unstoppable है, irreversible है. The only thing what we have in our hand, how good we prepare ourselves, first thing. Second, how we could create a smooth transit. That is the chance. So we are doing our best, and those who are in the higher level of consciousness, they are very close to realizing that they are God. We were told, Aham Brahmasmi Shivoham. When we realize this power, then the manifestation is much more effective. What exactly the concept is about God? See, the word is very beautiful, and it is the most confusing word because every person has is their own concept of God. Right. तो इंग्लिश में गॉड है, हिंदी में इसके दो इक्विवेलेंट हैं, ईश्वर और भगवान. ये दोनों अलग अलग हैं. लोग एक ही टर्म में यूज कर लेते हैं. जो लोग धरती पे फिजिकल बॉडी में पैदा हुए उनको हम भगवान कहते हैं. भगवान राम, भगवान कृष्ण एंड सो ऑन. हमें पता नहीं हुए कि नहीं हुए, लेकिन हमारा बिलीव है कि वो फिजिकल बॉडी में थे, उनकी स्टोरीज हमारे पास हैं. और जिसको हमने कभी नहीं देखा, जो ओमनी पोटेंट है, जो ओमनी प्रेजेंट है, दैट इज ईश्वर. हम कभी ईश्वर राम नहीं कहते, ईश्वर कृष्ण नहीं कहते, राइट? So with that Ishwar, we are part of that Ishwar. But you said it correctly. We are, उसका सारा फ्रैक्टल है. हम फ्रैक्टल बीइंग हैं, तो हम उसी की इमेज में बने हैं और हम उसी का हिस्सा हैं. वो एक अनेक में विभक्त हो गया डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने के लिए. वो हमारे थ्रू एक्सपीरियंसेस कर रहा है. हम वही हैं, सिर्फ हम जानते नहीं हैं क्योंकि हमारे ऊपर लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं. शेम एंड गिल्ट है. हम ह्यूमैनिटी को बहुत छोटा मानते हैं, तो इसलिए हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते. बट जो सत्य है वो यही है कि हम वही हैं. Right. So I want you to little bit brief about this map of consciousness. See, this is very important to understand where we stands. अगर हमें पता हो कि हमें इनर वर्क करना है, ये तो सुन लिया, लेकिन इनर वर्क में करना क्या है? तो इनर वर्क में हमें देखना है कि हम किस फ्रीक्वेंसी बैंड में रहते हैं. और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज the energies which are coming, which are creating that shift, that will increase what we have. It will multifold, say 5 times, 10 times, 100 times. तो हमारे अंदर जो ग्रीफ है, जो फियर है, जब वो मल्टीफोल्ड होगा तो हम उसको कैसे रिएक्ट कर पाएंगे. इसीलिए इस कॉन्शियसनेस, जो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसकी हमें हेल्प लेनी है. और सबसे नीचे मैंने मार्क करके रखा है कि सबसे लोअर लेवल पे क्या है, शेम एंड गिल्ट. ह्यूमैनिटी शेम और गिल्ट में जीती है. कंडीशनिंग ऐसी है, और मैट्रिक्स को सस्टेन करने के लिए ये शेम और गिल्ट इन बिल्ट है. ये रिलीजन के थ्रू इन बिल्ट है ह्यूमन के अंदर. इसीलिए वो अपने असली स्वरूप को, कि मैं ईश्वर हूं, जो पहले बात हुई थी, वो इसको नहीं जान पाता. वो अपने आप को बहुत लोएस्ट मानता है. सेम एंड गिल्ट को तो टाइम टू टाइम इस कॉन्शियसनेस को देखना, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, किस एस्पेक्ट पे हमें काम करना है. और एक और बहुत इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें है कि मान लो गुस्सा, तो क्या हायर लेवल पे गुस्सा नहीं आ सकता? आप किस तरह, कितने परसेंट आप इस फ्रीक्वेंसी में रहते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. That is important. Okay. डे टू डे लाइफ में मैनेज करने में हमें रिएक्ट करना है. कभी कभी बच्चे को आंखें भी दिखानी है, कभी समाज को भी करना है, लेकिन हम कितने परसेंट इस गुस्से पे रहते हैं. और ये गुस्सा क्यों आता है? फ्रस्ट्रेशन है, हमारी डिजायर पूरी नहीं हो रही, एंड सो ऑन. उसके फिर कारण को देखना, तो इन दैट वो हमें हेल्प करता है वर्टिकल रेज करने में हमारी कॉन्शियसनेस को. Okay, this is so good to know. Like how should everyone start preparing themselves for this important shift?
सी देयर आर मेनी एस्पेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि पहले वो कन्विंस हों कि एक शिफ्ट हो रहा है। अगर वो कन्विंस नहीं है तो उनका मोटिवेशन उनको बहुत ज़्यादा समय तक इसमें रहने नहीं देगा। वो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट के फॉर्म में ओके नई चीज़ मार्केट में आई है, डिस्कस कर लेते हैं, लोगों को बता देते हैं, छूट जाएगा। कन्विंस होने के लिए वो देखें, अगर साइंटिफिक कन्विक्शन चाहते हैं, ह्यूमन रेजोनेंस इंक्रीज हो रही हैं, धरती के इवेंट को देखें कि धरती पे क्या हो रहा है, पिछले 3 साल में हो रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, और अपने अंदर फील करें। दैट इज़ द कन्विक्शन पार्ट। इन्फॉर्मेशन गैदर करें। जब ये पार्ट खत्म हो जाए कि उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई, तब वो अपने ऊपर काम करें। तो फिर काम क्या करना है? इनर वर्क करना है। इसके लिए 2-3 वीडियो हमारे चैनल पे बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से बनाई गई हैं बिगिनर्स के लिए, कि वो देखें कि उन्हें क्या-क्या काम करने हैं। फिर उसके लिए कुछ टूल हैं, फॉर एग्जांपल मेडिटेशन हेल्प करता है। तो मेडिटेशन कौन-सा करना है? कोई भी एक। आजकल जब न्यू युग में हम आ चुके हैं, इंटरनेट की एक्सेस है सबके पास, तो यूट्यूब में लोग मेडिटेशन करते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी का मैनिपुलेशन है, वो हेल्प नहीं करता। या कोई सिंपल मेडिटेशन कर लिया म्यूजिक के साथ और फिर नींद आ गई, तंद्रा में आ गए, तो उसको हम मेडिटेशन मानते हैं। दैट इज नॉट द मेडिटेशन। मेडिटेशन ऐसा हो जो हमारी जो लेफ्ट और राइट में जब हमारी एनर्जीज मूव करती हैं, इसको योगिक भाषा में ईडा और पिंगला कहते हैं, इसके बीच के सुषुम्ना कानाल है, ये ओपन हो। ऐसी कोई टेक्निक का करें। तो कोई भी एथेटिक टेक्निक जो उनको सूट करती है, उसका वो अभ्यास कर सकते हैं। एक ऐसी कम्युनिटी में मूव करें जिसमें उनके डाउट्स क्लियर होते रहें, तो वो भी हेल्प करता है, क्योंकि अकेले आइसोलेशन में प्रैक्टिस करते हैं, फिर क्लियरिटी नहीं होती तो वो बंद हो जाता है। इस तरह वो अपनी प्रैक्टिस को आसानी से कर सकते हैं। So I suggest it is always better to have a mentor here, right? तो हमको एक मेंटर चाहिए जो मेडिटेशन हमको सिखा सके अच्छी से. So this will help us to raise our consciousness eventually. So Yes, that and moreover, I it is why mentor is so required, because it is altogether new dimension. Everything is right new. So everything. so so we need कि हमारे जो डाउट्स हैं उसको हम क्लियर कर सकें, डिस्कस कर सकें, व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड अस, उसको डिस्कस कर सकें। और आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल और बढ़ें, हाउ वी कुड डेवलप एज एन कम्युनिटी, तो ये सब बातें हेल्प करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं, इनकी बहुत ज़रूरत है। Right. लेकिन इसके साथ ही हमें सावधान भी रहना है कि बहुत सारे लोग जो ईगो बेस्ड हैं, उनको उन्होंने शब्द मार्केटिंग गिमिक है, कोई भी नई चीज़ मार्केट में आती है वो उन्होंने कैच कर ली। डीएनए एक्टिवेशन के कोर्स हो रहे हैं और चैनलर्स हैं, उसमें जो रॉन्ग है उससे बचना है। उससे बचना है. अगर मेंटर हो तो सही मेंटर हो, अगर गलत है तो वो गलत जगह ले जाएगा। और इस समय में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शिफ्ट की बातें सुनते हैं और बड़े बड़े गुरुज हैं, आप देखो कि बड़े बड़े गुरु का पिछले 3 साल में क्या रोल था। बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करें वेदर विच साइड दे वर स्टैंडिंग, धर्म की ओर और अधर्म की ओर। हम सब के आदर्श पितामह भीष्म थे, हम अभी भी लोग उनका नाम सुनते हैं। वो अधर्म की ओर युद्ध कर रहे थे। बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, द्रोणाचार्य भी बहुत बड़े गुरु थे उस समय के, लेकिन वो अधर्म की ओर थे। तो क्या जो हमारे गुरु हैं उन्होंने पिछले 3 समय में हमको बताया कि ये एक एजेंडा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं बताया? क्या वो जानते नहीं हैं? सो समथिंग लाइक दिस विल ओपन योर। ये जर्नी कलेक्टिव भी है और इंडिविजुअल भी है। अपनी जर्नी को आप स्लो डाउन नहीं कर सकते किसी खराब मेंटर के फॉलो करके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या सो जो डिफरेंस है कि ये मेंटर सही है और ये मेंटर सही नहीं है, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम कैसे पहचान डिटेक्ट पाएंगे। करें. यस, हाँ, ये बहुत एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो इसमें अपने आप में एक प्रॉब्लम है। आप एक फ्रीक्वेंसी हो, और फ्रीक्वेंसी मैग्नेट की ओर अपने आप आकर्षित हो जाती है, क्योंकि वो उससे रेजोनेट करती है। इसलिए अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी में हैं तो आपके पास कोई चांस नहीं है, आप अपने आप उसी की ओर आकर्षित हो जाओगे। तो सबसे बड़ा काम है कि अपने आप को, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना, और अपनी आंखें ओपन रखना, और अपने आप के बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की ताकत रखना। जो कुछ बिलीफ सिस्टम था जिसकी वजह से मैट्रिक्स अब तक सस्टेन होती रही, इसमें से बहुत सारा डिसफंक्शनल है, ये हटना है। और जो फंक्शनल है वो भी हटना है, क्योंकि ये डायमेंशन ऑल टुगेदर न्यू है। तो दोनों के केस में बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की ताकत, और जो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है कि हमें पता तो है कि सिगरेट नुकसान करती है, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे, है ना। हमें पता तो है कि ये हमारा गुरु है, ये हमें गलत रास्ते पे ले जा रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। ये साहस होना। मैं समझता हूँ कि मैं पर्सनल एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मैं सदगुरु जग्गी वासुदेव से मैंने दीक्षा ली डायरेक्ट,
उनके साथ, और मैं अपनी बेटी को उनके आश्रम में भेजना चाहता था। उनका एक आश्रम है हॉस्टल के रूप में बच्चों को वो, और जिसमें एजुकेशन की डिग्री भी नहीं मिलती। मैं सोचता था कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी गुरुकुल जैसी सिस्टम में। आज मैं बच गया कि मैंने देखा पिछले 3 सालों में, जब मैंने देखा कि ये पैंडेमिक में किस तरह वो डरा रहे हैं, किस तरह में वो वैक्सीनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में वो बैठते हैं। तो मैंने किताबें भी नेचुरली खरीदी, जब उनके फॉलो करते थे। तो मैंने घर में बात हुई कि सारी किताबें फेंक दो। तो मेरे बेटे ने पूछा कि पापा हम कैसे विश्वास करें? उस समय तो आप कहते थे कि तुम भी दीक्षा लो, आज कहते हो कि आप बेकार हो। दैट वाज द पॉइंट, जो सबको ये साहस सबके अंदर होना चाहिए। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस अभी हम देख रहे थे, उसमें 1 200 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो साहस की है। सी 200 पे करेज है। ये करेज हमको चाहिए अपने आप को बदलने का, ये स्वीकार करने का कि हम गलत थे। कुछ भी गलत सलत नहीं है। उस समय की मेरी कॉन्शियसनेस ने ये ठीक माना था, लेकिन अब कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं है, मेरे अंदर साहस है ये कहने का कि मैं गलत जगह था, मैंने छोड़ दिया। ये साहस सबको लाना चाहिए, और जल्दी से जल्दी। I know the time is very less. Yeah, because the time is very less. If you cannot waste a single second. Yeah. एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा कि जो इस समय ट्रेंड है, एक और रिस्क ह्यूमैनिटी पे बहुत बड़ा सर पे मंडरा रहा है, दैट इज कॉल्ड फेक एलियन इन्वेजन। तो उसमें एक एक नया, जैसे गैलेक्टिक इवेंट मैंने कहा, तो इमीडिएटली लोग कहते हैं गैलेक्टिक इवेंट है, ईटीज हमें हेल्प करने आएंगे। तो एक तो ईटीज को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, सेकंड एक फेक एलियन इन्वेजन का डर है। गवर्नमेंट जैसे पूरी दुनिया पे एक डर फैलाया, ऐसे ही पूरी दुनिया पे एक नया डर का रिस्क वो फैला सकते हैं कि एलियन ने अटैक कर दिया है हमारे ऊपर। तो ऐसे चैनलर से बचना, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को कहते हैं वो उन्होंने यूफोलॉजी इस सब्जेक्ट पे रिसर्च की है, वो सारे डार्क का एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अपनी आंखें खोल के रखना। राइट राइट। और व्हाट एग्जैक्टली द डार्क एजेंडा जो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो डार्क एनर्जीज है, वो कहाँ से आती है? इज दैट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस और इज एवरीवेयर, और हाउ विल यू डिफाइन दैट? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको काफ़ी घंटों तक डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन अगर साधारण शब्दों में समझें तो हमारे अंदर भी डार्क है, बिकॉज वी आर इन डुअलिटी। राम और रावण धरती पे दोनों थे, कौरव पांडव दोनों थे। तो इन इस डुअलिटी की गेम में जो थर्ड डायमेंशनल की जो मैट्रिक्स है, इसमें दोनों हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर के डर ने इसको प्रोजेक्ट किया है। ये कॉन्शियसनेस में जब लाइट आ रही है तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को डिटॉक्स कर रही है। तो उसके फियर सरफेस पे आ रहे हैं, उसके फियर मैनिफेस्ट हो रहे हैं, उसको हम डार्क एनर्जीज कहते हैं। ये एक फॉर्म है। इसके अलावा भी डार्क एनर्जीज हैं जो इसको फोर्स कर रही हैं, बट अल्टीमेटली यू सी इट इज ए गेम। चेस के गेम में दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों ने ये गेम डिसाइड किया ताकि ह्यूमैनिटी इवॉल्व हो सके। वो अपना रोल प्ले कर रही हैं, उसके थ्रू हम इवॉल्व हो रहे हैं। अगर वो अपना रोल ना प्ले करती तो हम सोते रहते, जैसे हम 2018 से पहले सो रहे थे। तो वी आर प्लेइंग दिस गेम टुगेदर। बट इसमें डार्क एंटिटीज फ्रॉम आउट ऑफ अर्थ भी हैं, विद इन अर्थ भी हैं, पावर प्लेयर्स भी हैं, एलिट्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, G20, G7, G8, ये सब हैं इसका हिस्सा। राइट राइट। ओके, what is the understanding, what is your understanding of मोक्ष? so मुझे जानना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। जैसे हमने पहले सबसे मोस्ट डिबेटेबल शब्द की बात की थी गॉड, दूसरा सबसे मोस्ट डिबेटेबल शब्द हो सकता है मोक्ष। इसकी हर एक की डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं मोक्ष के बारे में। मोक्ष, निर्वाणा, लिबरेशन, साल्वेशन, मुक्ति एंड सो ऑन। अभी तक की ह्यूमैनिटी में कुछ लोग मरने पे, डेथ सेरेमनी में मैं गया तो वहाँ पे कहते हैं उसकी मुक्ति हो गई। नो, कोई मुक्ति नहीं हुई, ट्रैप है। सिर्फ फिजिकल बॉडी छूट गई, फिजिकल बॉडी को दोबारा वो फिजिकल बॉडी लेके जल्दी धरती पे दोबारा आ जाता है। एक डेफिनेशन है जो वाइडली एक्सेप्टेड है कि जब हम इस डेथ और साइकिल को ब्रेक कर देते हैं, हम दोबारा अर्थ पे नहीं आते, दैट इज मोक्ष। तो आपकी भाषा में कि हमने वो ये चैप्टर सारे खत्म हो गए और हम इसके नेक्स्ट लेवल के फ्लोर पे आ गए लिफ्ट से, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन जो एक बहुत कंट्रोवर्शियल
ये टॉपिक हो जाएगा, डॉक्टर नेरुदा का इंटरव्यू है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप उसका लिंक डाल सकती हैं। फिफ्थ इंटरव्यू 1998 में प्रॉब्ली ये इंटरव्यू दिया गया था और 2014 में पब्लिश हुआ। 62 पेजेस हैं। उसमें बताया कि जो अर्थ पे अब तक मोक्ष का कॉन्सेप्ट था असेंडेड मास्टर से, दे ऑल आर ट्रैप्ड इनटू दिस साइकिल, स्टिल दे आर नॉट। सिर्फ हम जो फर्स्ट बबल में हैं वो सेकंड बबल में है, हमसे थोड़ी बेटर उनकी जेल है, लेकिन वो भी अभी तक पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। तो ये इसमें ऐड ऑन हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोग मुक्ति यही मानते थे मोक्ष को कि हम अर्थ पे दोबारा ना आ पाए, हमने सारे लेसन सीख लिए। और So जो we अब start होने with- वाला है वो इससे भी बियॉन्ड है, क्योंकि हम इस फर्स्ट बबल सेकंड बबल हम ये पूरा ब्रेक हो जाए अगर जेल, तो हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां पे हमारी कॉन्शियसनेस जिस लेवल पे भी जा सकती हो। Oh, that's nice to hear. So first second bubble जैसे आपने बोला वो ब्रेक करके हम कोई कॉन्शियसनेस अपनी रेज कर सकते हैं. So is that while living on this earth हम जीते जी ये चीज कर सकते हैं या यस, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन आता है। हम जीते जी ही करेंगे, ये पहली बार अर्थ पे ऐसा हो रहा है, लेकिन जीते यस पहली बार अर्थ, या शायद पहले 2 बार हुआ था लेकिन उसकी मेमोरी नहीं है, प्रॉब्ली ये थर्ड बार अगर हो रहा हो तो थर्ड में जो लोग असेंड कर गए उसके बाद के लिए अर्थ यहीं पे रह गई और रीस्टार्ट हुआ फ्रॉम द स्क्रैच। लेकिन अब की बार अर्थ जो नेक्स्ट डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी को धारण करने के लायक हो जाएगी, अर्थ और अर्थ पे रहने वाले सभी लोग, तो हम फिजिकल बॉडी में करेंगे। और कुछ लोग जो इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हायर डायमेंशन से आए हैं वो वापस चले जाएंगे जहां से वो आए हैं, बिकॉज दैट क्वारंटाइन ब्रेक हो जाएगी तो सबके लिए जाना पॉसिबल हो जाएगा। So there are some souls who are coming from the other planets, not only just they are not in the horizontal cycle, but they are coming from somewhere else Yes. to learn the lesson or to understand the humanity here, right? Not to understand or not to learn or understand the humanity, but to help the humanity. Help the humanity. Okay. Yes. It is a sacrifice they did because they were from that level. ह्यूमैनिटी के अंदर फ्री विल है, उस फ्री विल में यहाँ के लोगों पे उतर के यहाँ के लोगों को बताना कि एक पोटेंशियल है, एक शिफ्ट है, एंड दे वर द टाइम ट्रेवलर एंड दे न्यू इफ दे कुड नॉट कम in this point, in this very important juncture of that point, then there is a risk that you are trapped forever through transhuman agenda. So they are here and they will go back. And you said some people, there are not some, there are many. Wow, nice. It's very I'm feeling very positive when I hear these things, that there are some I mean many who are here to help us. Yeah. And we don't even know whether some are among us. Yeah, sure. So, why it is so that we are not feeling their energies or something like this? Because of the density of the earth. When they came, they have to forget each and everything. They came here as a normal human being and they started, and so because this process could be started from the earth itself. So that's why, and many of them are still in sleeping, or you can say they are in this density, they are not awakened yet, but they will be awakened at the perfect time, just in time, when they are needed, because it is their soul. कुछ लोग हैं जो they want to be on this path, but then they always keep making the reasons. What it could be exactly, why, or maybe they are not ready, or maybe their souls are not yet ready. See, the human love their comfort zone. They feel very comfortable in that and they don't want to leave it. Even if it is told there's such a potential is there. First they say, okay, what should I do? If the potential is there, it is going to happen for everyone. This is tamas. And this is the comfort zone. Yeah. So many people are in that zone. I have heard from many, जो सबका होगा वो हमारा होगा, क्यों चिंता करनी? Yes. फिर हम क्यों करें? हम क्यों करें? Yes. Like that. Right? When they are sowing the seed, तो हमारा काम है कि सीड को खुले हाथों से करना। हमें ये नहीं पता कि वो लैंड फर्टाइल है कि नहीं, और अभी फर्टाइल नहीं है तो कुछ समय बाद भी हो सकती है, बस हमें अपने बीज फैलाने हैं।
What do you think about the AI era that is coming in? So आपका क्या कहना है? Is this like a totally the dark agenda, or it's like a part of it? आई वुड से इट इज़ टोटली डार्क एजेंडा। कंप्यूटर ने हमारी लाइफ इजी की है, लेकिन जो एआई पार्ट है दैट इज़ वेरी डेंजरस एंड इट इज़ ग्रोइंग सच एन phenomenal exponential that we are very close to singularity. Singularity is the point where we cannot revert it. That was my next question about the singularity. What Yeah. is the singularity? Yeah. So we are very close to that, and it is very dangerous. And this is the biggest threat. That's why the star seeds came on Earth to stop it. Because once we are trapped, Dr. Neruda, in the interview I mentioned, he said, if the human 3.0, he called it human 3.0, that is human trapped into this AI, then there is no chance. Forever, the humanity is trapped forever. So it's a very hard word, but it is so. Yeah, but we have to manifest that this doesn't happen. It will not happen. It will not happen because our future version exists in this infinite universe. That is a clear sign that it cannot happen. Okay. But so still, like the risk is very big. The risk is okay. Okay. What are your suggestions, like in the investing options? So what could be the best investing options? Because I know the systems are going to be destroyed and they're collapsed. So see, if it is अगर आप बड़े उसमें कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो अपना सब कुछ, अपनी कम से कम एनर्जी को वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जा सके। और फिफ्थ डायमेंशन, नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस से बेटर कुछ भी नहीं। अपनी एनर्जी का जो पोर्शन है, डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल है, अगर आपकी डे टू डे लाइफ का फोकस अभी भी सर्वाइवल मोड में है, देन यू आर पार्ट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। सो फर्स्ट फोकस हायर डायमेंशंस के लिए। अब उसके अलावा फिर जो भी हमारे मीन्स हैं, टाइम और एनर्जी और मनी को एकदम उनको लगता है कि मनी, अगर डिजिटल करेंसी की बात होती है ना, तो और बैंक फेल होने की बात होती है, इकोनॉमिक कोलैप्स होने की बात होती है, तो हम क्या करें? अपनी सेफ्टी के लिए वो थोड़ा सा अमाउंट चाहें तो सिल्वर कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। देयर इज़ नो गारंटी कि वो ऐसा करेंगे तो वो बच जाएंगे। हमारी कॉन्शियसनेस हमारी रियलिटी को क्रिएट करती है। अगर कॉन्शियसनेस में जंप नहीं आया और उन्होंने सारा पैसा सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया या क्रिप्टो करेंसी एंड वट एवर वेज, वो वैसा नहीं होगा जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया है। क्योंकि कॉन्शियस, आप देखो 2 देशों में लड़ाई हो रही है, रूस और यूक्रेन में, सबके साथ एक जैसा थोड़ी हो रहा है। कुछ लोगों का जीवन बेटर हो गया क्योंकि वो उनको यूरोप में रहने की परमिशन मिल गई, कुछ लोग मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ सैनिक जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज हो गए। इवेंट तो एक ही है, हर एक की इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस उसको रिएक्ट कर रही है। सेम वे अभी भी हमें कॉन्शियसनेस पे इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा है। फिर भी अपनी कॉन्शियसनेस को हमारा जो हम एक्शन लेते हैं वो भी थोड़ा सपोर्ट करती है। सिल्वर कॉइन में कर सकते हैं, कुछ लोग सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को कहते हैं कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कर लें तो उनके माइंड में सेफ्टी रहेगी। बेस्ट है कम्युनिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्राइसिस हुई तो वो एक कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। दैट वी हैव टू लर्न। अभी तक हमने सेपरेशन बेस्ड जीवन जिया है, हमने इसको, सेपरेशन ही हमारा एक मोटिव है, दूसरे से हम बड़े हो जाएं, है ना, दूसरे से अलग दिख जाएं तो हम, ये हमने अब तक ऐसा जिया है। इस सेपरेशन से वननेस सीखने का समय है। कम्युनिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह के मूवमेंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर ये पता लग जाए कि जाने ही वाला है तो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे काम हम कर सकते हैं। राइट, वेरी गुड टू नो अबाउट दिस। एक क्वेश्चन था जो सिंगुलैरिटी के बारे में, मुझे थोड़ा ब्रीफ में, डिटेल में ये जानना है, व्हाट एग्जैक्टली द सिंगुलैरिटी इज एंड यू नो हाउ वी कैन सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट। जो सिंगुलैरिटी, हाँ, जो इसको टेक्निकल टर्म्स में सिंगुलैरिटी इस तरह यूज होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस, अभी तक वो ह्यूमन पे डिपेंडेंट है।
जब वो उस पॉइंट पे आ जाए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, उसको ह्यूमन पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, वो अपने डिसीजंस खुद लेने लगे, दैन इट इज सिंगुलैरिटी। वो दैट इज पॉइंट ऑफ इरिवर्सिबल। तो ये इस डायरेक्शन में जो ग्रोथ है, ह्यूमन उसको जज नहीं कर पा रहे इसके रिस्क को। वी आर वेरी क्लोज टू दैट लेवल। सो दैट इज सिंगुलैरिटी, कि वो एआई खुद कंट्रोल ले ले ह्यूमन के ऊपर। Hmm. फर्स्ट थिंग, Exactly. ह्यूमैनिटी इज डिवाइडेड। दे बिलीव Yeah. कि जो कंप्यूटर ने हमारी लाइफ इजी की है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एआई दो डिफरेंट अलग अलग बातें हैं, लेकिन वो उसको एक तो मिक्स करते हैं। सेकंड, जो टेक्नोलॉजीज हमें, जिसको हम समझते हैं कि हमें टेक्नोलॉजीज पता है, चैट जीपीटी एंड सो ऑन, वी आर मच बिहाइंड। टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट इससे कहीं एडवांस्ड हैं, कहीं बहुत एडवांस्ड हैं। सो बहुत दैट इज वाई द रिस्क इज मच मोर। हम आज की right. जो टेक्नोलॉजीज हमें दी गई हैं, उन टेक्नोलॉजीज के बेस पे हम डिस्कशन करते हैं और हम कहते हैं हमें ओ इसका रिस्क हमें थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है। टेक्नोलॉजी तो उसके बहुत बियॉन्ड अवेलेबल हैं, और इसलिए Right. उसका रिस्क इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और इस रिस्क को सिर्फ मैं जरा सा बताना चाहता हूँ, जापान की गवर्नमेंट की वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है, स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं और चाइल्ड जो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। तो हम आपका अवतार, आपकी कॉन्शियसनेस को बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके हम उसको अवतार में डाल सकते हैं, सो दैट यू कुड लिव फॉर एवर। दिस Wow. टाइम, दिस, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में है ये इंफॉर्मेशन। तो आप समझो कि रिस्क कितना बड़ा है। और ग्रेट रीसेट और ग्रेट अवेकनिंग में सिर्फ इतना ही अंतर है, काफ़ी बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं। ग्रेट अवेकनिंग में भी हम बहुत लंबे समय तक जिएंगे, ग्रेट रीसेट में भी हमारा लेकिन अवतार जिएगा इमोशन के बिना। वो जीवन जीवन नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए चॉइस नहीं है। मेरे पास ग्रेट रीसेट में मुझे नहीं जीना। True. And I think whoever understands this concept, nobody would like to live like that. यस, शायद लोगों को उसकी अभी गहराई नहीं पता है। नहीं पता है। इसीलिए मुझे आश्चर्य नहीं होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे डिसीजन लेंगे। डिसीजन का चॉइस किसके पास है? मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। हाँ, वो खुद के पास होता है चॉइस। Gathering मेरा information and working upon yourself simultaneously. वर्किंग अपॉन इंफॉर्मेशन, Most राइट। of the people are still on the very first phase. फर्स्ट फेज जो था ये 3 साल पहले था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाला। वो फेज अब निकल चुका है, अब अपने ऊपर काम करना है बहुत तेजी से। या कुछ लोग खुद को लाइट वर्कर्स बोलते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड। बट वो पूछना चाह रही थी कि जो भी लाइट वर्कर्स है वो एक साथ मिलके मदर अर्थ के लिए जो कॉन्शियसनेस रेज करनी है वो कर पाएंगे? अगर वो नहीं कर रहे हैं अपने फ्री विल से भी, तो क्या वो ऑटोमेटिकली कर पाएंगे आगे जाके? वो सी, हो सकता है। जो लाइट वर्कर हैं वो कर रहे हैं और कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, टाइमलाइन को मैनेज कर रहे हैं, और वो अपना काम कर पाएंगे अगर वो ट्रू लाइट वर्कर हैं। अगर ये क्वेश्चन है तो वो ट्रू लाइट वर्कर नहीं है। जो ट्रू लाइट उनका वर्कर हैं वो अपना काम कर रहे हैं और कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1% ऑफ द ह्यूमैनिटी एक साथ मिलके कुछ भी मैनिफेस्ट कर सके, जिनकी कॉन्शियसनेस अच्छी है तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर उनका क्वेश्चन ये है कि क्या सारे लाइट वर्कर एक बार कलेक्ट होके इसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तो इसका आंसर कुछ और हो सकता है। हाँ, मतलब the question was the combination of multiple things. I have formed a question in a simple way कि उनका जो है वो साथ मिलके मदर अर्थ के लिए यस, अगर वो साथ मिलके जो ये कहना चाहते हैं कि उसमें एक है कि अगर बहुत थोड़े से लोग भी, सिर्फ 20,000 पीपल भी, जिनकी कॉन्शियसनेस एक बियॉन्ड दैट लेवल हो, वो मिलके कुछ मैनिफेस्ट करें, तो वो अर्थ पे वही रियलिटी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा है और कलेक्टिव होके ये पावर बढ़ जाती है। लेकिन क्या लाइट वर्कर साथ आ पाएंगे? लेट अस सी, प्रॉब्ली दे विल कम। आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड अबाउट कोबरा और नॉट। ही इज I आल्सो have इनटू, in your या, video. in Yeah. that, I think in the latest interview he was asked about the light workers, and probably the answer was most of them are still sleeping. So the people who But are we will in awake. There is no, we will awake at the correct time. okay. Okay. And that's a good news. Yeah. जो कोबरा के बारे में आपने बताया, so is he having any social media or anything like that on him? Because I didn't found his articles anywhere. Yes. Earlier there was a website and his Facebook presence was there, but
like infiltration and all these things, now there is only a block. They In this only have a blog, he used to post whatever he wants to give. It's a kind of military briefing. Oh, okay. Okay. It looks like it's not that much, uh, he's not coming out in public that much, or ऐसा कुछ है या Yes, he's he does not want to be because of his own security, and Right. he just brief whatever is needed. right. ये मिलिट्री ब्रीफिंग आपने देखी होगी, वो सिर्फ उतना बताते हैं जितना उन्हें बताना है. तो ही इज डूइंग हिज जॉब परफेक्टली. इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ वो बता रहे हैं वो सही है, वो जो कुछ भी बता रहे हैं वो हमारे लिए सही है या हमारे लिए जरूरी है. वो इस हम भी भाव से कैसे देखना चाहिए. समझते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है ना, वो जो भी बता रहे हैं वो हम भी कैसे यस, समझते वो हैं. यस उसको हम कैसे समझ पाते हैं और उस पर हम कैसे एक्शन ले पाते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है. Right. Okay. Yeah, this is good to know. Um, एक क्वेश्चन था about the numbers, the angelic numbers. How to interpret this kind of numbers when we see them? Because what I do till now is like I just pray. सो व्हाट यू आर डूइंग इज द परफेक्ट थिंग कि जस्ट आप देख रहे हो और इससे ज़्यादा उसका महत्व नहीं है. जो नंबर इंटरनेट पे दिए हुए हैं वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक का पार्ट है. बट दीज नंबर्स आर significant. They are telling you that you are being synchronized. Universe is have selected you. वो आपको बार बार कॉलिंग दे रहा है. इसकी बस इतनी सिग्निफिकेंस को देखें और ये जाने कि हम इस हद तक सिंक्रोनाइज्ड हो चुके हैं, हम फोटोन बेल्ट में हैं कि हमारे थॉट्स मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, हमारे अंदर टेलीपैथिक एबिलिटीज बढ़ रही हैं और ये सिंक्रोनिसिटी का एक साइन ये नंबर आपको बताते हैं. इससे ज्यादा मैं कोई महत्व नहीं देता. एंड दैट्स इट. That's it. Okay. जस्ट टेक इट नोटिस कि आपको यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया है, इसके प्रति ग्रेटिट्यूड है, इसके साथ हम अपना काम कर रहे हैं और हम समझ गए हैं कि यस हम सिंक्रोनाइज्ड हैं, हम इसका पार्ट हैं. मुझे ये जानना था, जो फोटोन बेल्ट के बारे में आपने एक वीडियो में बताया है, यू हैव डिस्क्राइब्ड वेरी वेल इन दैट वीडियो. आप उसके बारे में कुछ ज्यादा बता सकते हो प्लीज? जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं फोटोन, उन जब किसी एस्ट्रोनॉमर्स को भेजा जाता है तो उसको ट्रेंड किया जाता है लोअर मैग्नेटिक फील्ड में. जहाँ पे भी जब ये मैग्नेटिक फील्ड लोअर की गई तो उनके अंदर जो सेल हैं, सेल का जो एजिंग प्रोसेस है स्टॉप हो गया. दे वर गेट बिकमिंग यंगर. उनके अंदर टेलीपैथिक एबिलिटीज ऑटोमेटिक हो गई, जबकि वो साइंटिफिक बैकग्राउंड के थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं था, बट दे वर कम्युनिकेटिंग. ये हमेशा होता है जब भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लो हो जाती है और हम एक बड़ी डेंस उस पार्टिकल से हमारा सोलर सिस्टम गुजर रहा है. पहले तो ये माना जाता था कि वो इतना डेंस है कि इसको शॉक लगेगा जब हम उससे टच करेंगे, बट वी हैव स्मूथली एंटर्ड इनटू दैट जोन. और जितना हम उस जोन में जाते जा रहे हैं उतने हम सिंक्रोनाइज्ड होते जा रहे हैं और हमारे थॉट्स मैनिफेस्टेशन और नए युग के लिए प्रिपरेशन के लिए हमारी बॉडी के जो हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो प्रिपेयर होते जा रहे हैं. उस बेल्ट में होने का ये लक्षण है. ओके. और सो इससे क्या हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, लाइक इन द सेल्स, इन द डीएनए एंड ऑल दैट, लाइक नेचुरली हम लोग जो हैं, ये जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन न्यू अपग्रेड हो रहा है. जो ह्यूमैनिटी के जो पोटेंशियल था, जो 2.2% ब्रेन और 10% डीएनए, ये अभी तक का प्रिमिटिव है उस कॉन्शियसनेस के अगर कंपैरिजन करें तो कुछ भी नहीं है. ये सारा अपग्रेड हो रहा है, तो इसके अपग्रेड होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया इसी बेल्ट के. तो सारी बातें एक साथ हैं. सोलर फ्लेयर, फोटोन बेल्ट, शूमन रेजोनेंस, कॉस्मिक साइकिल, इसके अलग अलग शब्द कहते हैं, अलग अलग उसके हिस्से हैं इस पजल के, लेकिन अल्टीमेटली इसी एक ही डायरेक्शन में कॉन्शियसनेस शिफ्ट, ह्यूमन अपग्रेडेड वर्जन, इतना अपग्रेडेड वर्जन कि उसको आज की कॉन्शियसनेस कंप्रीहेंड भी नहीं कर सकती. आज की जो लॉजिकल माइंड है उसको कंप्रीहेंड ही नहीं कर सकता. मतलब वो समझ ही नहीं सकता कि उसका अपग्रेडेड ह्यूमन में क्या पोटेंशियल है, क्या होगा, क्या पोटेंशियल है. या nobody can vision because nobody have experienced it yet. यस, हमारी जो आदत है माइंड से सोचने की है, माइंड पास्ट से फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो दैट इज अ लिमिटेशन. ये इसके बियॉन्ड की चीज है. दैट्स where there is no time and space. या देयर इज नो टाइम एंड स्पेस. यस, अगर वहां पे कोई जो जाता है इस समाधि के स्टेज में, वो इसको देख पाता है कि क्या है, लेकिन उसमें बहुत कम है जो ऐसा देखते हैं वो बताते नहीं हैं. तो जो बचता है, जो वो लॉजिकल माइंड वाले अपना
कंक्लूजन निकालते रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, इससे भी बहुत अच्छा है। और एक और बात, हमें अपने आप को, बिलीफ सिस्टम को थोड़ा-सा छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। अगर बिलीफ सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, फोटोन बेल्ट में हम हैं, हमारी कॉन्शियसनेस हमारी रियलिटी क्रिएट कर रही है, और बिलीफ सिस्टम कहेगा ऐसा नहीं हो सकता, देन वी आर क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स। हम True. इतना ज़्यादा हो रहा है जितना हम सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा हो सकता है, बस ये विचार रखें कि हमारा माइंड अभी नहीं जान सकता। So we have to start believing in magic actually, because people जो माइंड है वो ये समझना नहीं चाहता, या फिर वो नहीं समझता कि वो जो हम समझ नहीं सकता, उसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन है कि जो हम सोचते हैं वो एक्चुअली में हो सकता है. यस। थॉट इज अ वाइब्रेशन. या और ये थॉट जो है एक ऐसा ह्यूमन क्रिएट कर रहा है, अपग्रेडेड वर्जन जो है, जो हमारी कल्पनाओं के भी परे उसकी पोटेंशियल है। जिसको आप भगवान कहते हो, वो सारा पोटेंशियल इसके अंदर इनबिल्ट है, ये सारा अनफोल्ड होने वाला है। दैट्स रियली लाइक आउट ऑफ विजन. वी कैन नॉट इवन इमेजिन. नॉट नाउ, बट व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, तब हम देखेंगे, और हमारी रीबर्थ के प्रोसेस से हम सब गुजरेंगे। इट इज लाइक ए मेटा मॉर्फेस और वट, बट जो जिसमें कैटरपिलर जो तितली बनता है, उस प्रोसेस से जब हम गुजर के वहां पे जाएंगे, तो हम वो सब कैपेबिलिटीज हमारे अंदर प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। And it is really going to happen soon. It's not something इट्स like वेरी सुन, 10 years later or something. It's going to happen very soon, वेरी right? सुन, our generation will can experience it. The potential Already. is there. Okay. So ये जो 5D shift है, it's already started now, or it's in the middle of, or it's in the starting position, or is in the middle? It is, we can say it is in the starting position. In Okay. this 1st July, the process may start now. The doors are open. But in the starting, very few people will start. And the more and more people will come into this phase, they will change the Akashic record, they will change the collective consciousness, then more people will come, and then suddenly there will be a 100 monkey effect. So many people will be there, and they will change the complete consciousness. Though there are so many who understand this already, but it's still in a lesser amount. I think it is in a good amount. It is, the divine plan is working perfectly. It is unfolding perfectly. Okay. Okay. And it's good to know that. बहुत सारे लोगों ने जिंदगी भर ये सोचा कि महाभारत हुई थी, हम क्या करते, अगर हम होते तो हम किस तरफ होते। आप एक महाभारत में हो, और ये क्वांटम उससे भी बहुत बड़ी है। उस समय तो एक हस्तिनापुर और एक छोटा सा हिस्सा में युद्ध हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अधर्म हो रहा था। इससे बड़ा अधर्म कोई हो नहीं सकता, ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करना। इससे बड़ा अधर्म सोचा भी नहीं जा सकता, होना तो छोड़ो। इस अधर्म धर्म अधर्म के बीच में आपके पास मौका है, किस तरफ खड़े हो गए। अगर कन्विंस हो तो धर्म की ओर खड़े हो, उसके लिए टूल्स हैं, तैयारी है, और एक टीम है, हम सब मिलके इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो वी कुड डू इट। Very well आई एम said. अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी, जो भी आपको चाहिए, जितना मैं बता सकता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, हम कर सकते हैं मिलकर एक साथ। Very thankful to you, Praveen ji. ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Praveen ji. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू, इट्स माय प्लेजर।